My dear students, मैंने जो ये the lecture which I am going to now post is not only for 10 students, 10th passed I would say, but those who have passed 12th from science stream, for them also it will be useful. As well, those who are not even connected to commerce, like they are from science stream, and for a common man who would like to understand accounting and its basic concepts and basic terminologies, I would be concentrating for making you understand these basic things. Let's proceed. और सिंपल है, कुछ नहीं. अकाउंट्स मैंने कोई ऐसा लंबा सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. छोटी छोटी चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूं. सबसे पहला, सिंगल एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट इज अ कंसेप्ट? कंसेप्ट इज नथिंग बट एन assumption, and on that assumption you have to think to complete your accounting. समझा? वापस समझाता हूं. कंसेप्ट मीन्स द assumption. assumption यानी क्या? हमने कुछ तो भी assume करना है कि नहीं? तो assumption which is necessary, assumption is necessary for अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. यानी पूरा जब अकाउंटिंग अपने को करना है तो ये assumptions के ऊपर बेस्ड रहता है. और ऐसे assumptions बहुत सारे हैं, मगर जिसमें से दो assumptions, only two assumptions are important, and I will first explain them. Let us presume that Mr. Ratan Tata is running a business, Tata Enterprises, and in this Tata Enterprises, ownership is entirely held by Ratan Tata. Owner only Ratan Tata, no one else. Now see here, assume Ratan Tata as an individual who is separate from Tata Enterprises. Separate मतलब देखिए कैसा, एक एग्जाम्पल्स की मदद से समझा देता हूं. टाटा एंटरप्राइजेस का बिजनेस है कि टाटा एंटरप्राइजेस जर्मनी से स्टैंड्स खरीदते हैं. बराबर है? टाटा एंटरप्राइजेज ने जर्मनी से 5 करोड़ के स्टैंड्स खरीदे. अब क्या होगा? और पैसे किसने दिए? मान के चलिए पैसे भी जर्मन कंपनी को टाटा एंटरप्राइजेस ने दिए. सो देयर आर टू पार्टीज इन दिस, टाटा एंटरप्राइजेस and German company. These are two parties involved. Okay? Now, this entry will be made by Tata Enterprises, but it will not be made by Ratan Tata. अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं. रतन टाटा introduces some money, suppose 5 crores
in the business. So this transaction is between Ratan Tata and Tata Enterprises. Right? So entry will be made, accounting transaction will be entered by Ratan Tata in his domestic books as well as it will be entered by Tata Enterprises. So what are you doing? Even though the transaction is between Ratan Tata and the company, the sole proprietorship which is owned by Ratan Tata, both are actually same from a common man's angle, but from the accounting angle, these are two separate persons. This is one concept which is very important in accounting, and whenever you think about accounting, think like this. Ratan Tata pays money to his nephew. So it is transaction between Tata and nephew, no entry by Tata Enterprises, no transaction for Tata Enterprises. Tata Enterprises sells goods to customer. So it is transaction between Tata Enterprises and customer, no entry for Ratan Tata in his domestic books. But if Ratan Tata pays to nephew, it will be entered in the domestic books. I have made it as clear as possible. Now, second concept which is again important. There are many concepts and conventions according to which you have to record the transaction in accounts. But the two concepts which are important for today's lecture are single entity concept and second accounting period concept. आपने तो कंसेप्ट यानी क्या देख लिया, मगर उसके पहले ये जो दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं उसको समझ लो. अकाउंटिंग पीरियड यानी क्या. नाउ इट इज नॉट डेफिनेट दैट दिस पीरियड, वर्ड पीरियड indicates 1 year. This period may be of 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 12 months too. And any accounting entity, this is an entity. Tata Enterprises is an entity. Ratan Tata is a separate entity. Now, every entity, whether it is Tata Enterprises or Ratan Tata, these entities choose a certain period. Period मतलब certain duration. मान के चलो that duration is 5 months. So Tata Enterprises will make accounting for every 5 months. So 5 months means, suppose it starts in January, February, March, April, May, January to May. Suppose I take the year as 20, it will be January 20 to May 20. This is 5 months. These are 5 months. Now, let me go ahead. Next 5 months will be June, July, August, September, October. So, June, July, August, September, October. June 20 to October 20 will be next accounting period.
So first of all, remember accounting period may be of 12 months, accounting period may not be of 12 months, but for all convenient purposes, for all convenient purposes, normally every enterprise chooses the period as of 12 months. So now 12 months, I will take one example now. Suppose 12 months, starting date is 1st April. Now I count 12 months. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So it will be 31st March of next year will complete 12 months. यानी 1st April 20 पकड़ता हूं मैं यहां पे, तो 31st March will be 21. So it will be a period from 1st April 20 to 31st March 21. अब ये जरूरी क्यों है? मतलब अकाउंटिंग पीरियड जरूरी क्यों है? ऐसे चूज करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें साल भर में हमने क्या कमाया, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, या क्या गमाया, क्या लूज किया हमने, यानी हमारा लॉस कितना है, वो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ पीरियड कंसिडर करना पड़ेगा. अगर हम 5 मंथ्स कंसिडर करते हैं तो पी एंड एल पीरियड विल बी ऑफ 5 मंथ्स. अगर मैं 12 मंथ्स कंसिडर करता हूं तो पी एंड एल विल बी ऑफ 12 मंथ्स. सो दैट इज व्हाई फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड, फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, we have to assume certain accounting period. So accounting period here now I consider 1st April 20 to 31st March 20. If I want to calculate profit or loss for this period, I have to compare my incomes with my expenses. So what I will do is I will assume accounting period first. Most of the time it will be chosen as 12 months. This will be assumed for calculating the profit or loss of that particular enterprise. For calculating profit or loss, it is necessary to compare the income with expenses, and if this side is heavier, expenses are heavier than income, naturally it will be expenses are more, income is less. Harshal, if expenses are more and income is less, what will that be? Loss. You are right. Now Vikram, if it's reverse, my income is more but my expenditure is less, Vikram, what will that be? It will be profit. Very good. सब ये कोरोना का पीरियड है. कोरोना का पीरियड है तो हम ये देखेंगे कि कोरोना में भी कैसे हमारा इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम आएंगे, और हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, और हम कैसे हमारे एंटरप्राइजेस को लाइव रखेंगे. सो नाउ यू नो अकाउंटिंग पीरियड. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज चोजन बाय एवरी एंटरप्राइज एज 12 months. We calculate
profit or loss for these 12 months, and that profit is arrived at by making profit and loss account. It will give you either profit or it will generate a loss. Whether there is profit or there is loss, it is the profit or loss of this Tata Enterprises. मतलब ये लॉस और प्रॉफिट है किसका? टाटा एंटरप्राइजेस का. अगर प्रॉफिट है तो देना भी पड़ेगा. प्रॉफिट है तो पैसे कमाए ना, कमाए हुए पैसे टाटा एंटरप्राइजेस क्या करेगी? टाटा एंटरप्राइजेस विल पे इट टू रतन टाटा. So remember, if there is profit, then Tata Enterprises will owe. O means will have to pay the money to Ratan Tata. If Tata Enterprises उल्टा हो गया, Tata Enterprises incurs loss. If there is a loss in Tata Enterprises, what will Tata Enterprises take an action? Tata Enterprises will recover that money from Ratan Tata. So, if Tata Enterprises is solely owned by Ratan Tata and Tata Enterprises earns a profit, then it will have to pay. So, if Tata Enterprises has profit, it will have to pay. If Tata Enterprises is in loss, it will have to recover from Ratan Tata. Have you understood, Harshad? Fully? If you have any difficulty, you can come across any time. You can ask me. Even if slightest doubt you have, don't go ahead. Should I repeat? No. I'll continue. Harshad says, let's continue. Okay. Now, I have explained you what? First, single entity concept. Second, accounting period concept. And from accounting period concept, I have extended my explanation to profit and loss account, which is the purpose of accounting. Accounting का purpose आधा क्या है? आधा purpose क्या है? P&L अकाउंट प्रिपेयर करना. फिर बचा हुआ आधा कौन सा? अब बचा हुआ आधा कौन सा है वो समझ लीजिए. हमारे यहां जब हम लोन लेते हैं, कोई भी एंटिटी जब लोन लेती है ना, टाटा एंटरप्राइजेस को अगर लोन चाहिए, टाटा एंटरप्राइजेस को अगर लोन चाहिए तो टाटा एंटरप्राइजेस किसके पास जाएगी? कोई तो भी इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी. मान के चलो टाटा एंटरप्राइजेस लोन मांगने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गई, या डॉइश बैंक के पास गई है. अब अगर टाटा एंटरप्राइजेस लोन मांगने के लिए इनके पास जाएगी तो टाटा एंटरप्राइजेस को ये बैंक क्या बोलेगी? भाई तुम्हारे पास गिरवी रखने लायक क्या है? यानी मैं लोन कैसे क्या दूं आपको? तो फिर टाटा एंटरप्राइजेस बोलेगी कि मेरे पास बिल्डिंग भी है, मेरे पास फैक्ट्री में मशीनरी भी है, मैंने जिनको गुड्स बेचा हूं उनसे मुझे पैसे भी लेना है, मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे जमा है, मेरे खीसे में कैश भी है. तो टाटा एंटरप्राइजेस एसबीआई को बोलेंगे देखो भैया मेरे पास बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, डेटर्स भी है, बैंक भी है, कैश भी है. कितने की है? मान के चलो मेरे पास ये सब कुछ मिला के 200 करोड़ की है.
ये आपके लिए क्या जनरेट करते हैं? बिल्डिंग विक्रम आपके लिए क्या जनरेट करती है? बेचने से पैसा जनरेट करती है। अगर बेचते नहीं है तो क्या जनरेट करती है? एसेट जनरेट। मतलब बिल्डिंग से आप आपके बिजनेस में काम ला सकते हैं। बिल्डिंग को मशीनरी आपका प्रोडक्शन कर देगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं किया तो बेच करके पैसे मिलेंगे। डेटर्स मतलब जिनको उधारी पे गुड्स बेची है तो उनसे भी पैसे वसूल करेंगे ना। तो ये सब हमारे पास मिलकर के 200 करोड़ का है। दोनों लोन है ना। टाटा एंटरप्राइजेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि लोन दो ना, ये 200 करोड़ है मेरे पास 200 करोड़ के ऊपर लोन दो। कितना चाहिए? मेरे को 100 करोड़ चाहिए। ऐसा एसबीआई से मांग की टाटा एंटरप्राइजेस ने। अभी मांग तो की तो एसबीआई सोच में पड़ गई कि 200 करोड़ ये आदमी के पास, रादर टाटा एंटरप्राइजेस के पास 200 करोड़ है, मगर ये जो 200 करोड़ है ये 200 करोड़ के अगेंस्ट और कोई बैंक से लोन लिया है क्या? बराबर है? या बैंक से लोन नहीं लिया तो और कोई सैलरीज पेएबल है क्या? या कोई क्रेडिटर्स है क्या जिनसे माल उधार लिए और पैसे नहीं दिए? तो एसबीआई ये सब पूछेगी कि क्रेडिटर्स कितने हैं। सीआरएस मतलब क्रेडिटर्स है। बरा जब ये वीडियो पे आ जाएगा तो आप बोलेंगे ये ठीक से दिख नहीं रहा, तो जाने दो, मेरा इतना अक्षर तो खराब नहीं है। क्रेडिटर्स। उसके बाद लोन फ्रॉम सिटी बैंक, बराबर है। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, सैलरीज, ये सबका मान के चलो बर्डन 130 कोटि का है। यानी रूता ये देखो कि 200 करोड़ बिल्डिंग वगैरह सब जनरेट करेंगे, सिटी बैंक क्रेडिटर्स वगैरह को 130 कोटि देना पड़ेगा। यानी एसबीआई बोलेंगी 200 करोड़ में से 130 तो चले गए, बचेंगे कितने? 70 कोटि। तो 70 कोटि के अगेंस्ट अगर मैं 100 कोटि का लोन दे दूं तो मैं तो मर जाऊंगा। तो एसबीआई इसको लोन देने वाली नहीं है। हर्षल समझ गया बराबर? शुड आई रिपीट? नहीं। संपदा अगर 200 करोड़ में से 130 करोड़ इनको देना है तो बचे हुए 70 करोड़, क्योंकि ये जो है ये सेम रहता है, आप ध्यान में रखो। अभी पहले दोनों की टोटल सेम रहती है, ये सेम नहीं है, मतलब कुछ तो भी 70 कोटि है। ये 70 कोटि क्या होंगे? दिस इज कैपिटल ऑफ रतन टाटा। यानी दिस इज मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय रतन टाटा। यानी 200 करोड़ का एसेट खरीदने के लिए आपके सोर्सेस, विक्रम समझ रहे हैं? आपके सोर्सेस कौन से हैं? मतलब ये 200 करोड़ की एसेट खरीदने के लिए सोर्सेस कौन से हैं? तो रतन टाटा से 70 कोटि लिए, सिटी बैंक से लोन लिया, ये वगैरह वगैरह करके ये 130, ये 70, 200 और ये। अब ये पैसे टाटा एंटरप्राइजेस को सिटी बैंक को देना है, क्रेडिटर्स को देना है। ऑल जो चीजें देना है उसको कहते हैं लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से लास्ट डे पे, जिस मोमेंट पे हम एसेट लाइबिलिटी का आप कंपाइलेशन करते हैं, इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस होने वाली शीट बैलेंस हो गई, वो सब
70 और 130 200 और एसेट्स 200। अब आपको समझ गया सिंगल एंटिटी, आपको समझ गया अकाउंटिंग पीरियड। कोई दम नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अकाउंटिंग में कोई दम नहीं है। मैं जैसे अभी ये ले जाऊंगा ना आपको, तो आपको लगेगा कि क्या फालतू चीज है ये। तो अकाउंटिंग पीरियड 5 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 24 महीने सिलेक्ट कर सकते, पर अभी सब लोग सिलेक्ट करते हैं 12 महीने का। मैंने 12 महीने का अजम्पशन लिया, ये वाला। अब इस पीरियड का अजम्पशन क्यों लिया? ताकि हम इस पीरियड का प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट होगा तो रतन टाटा को पे कर देंगे, पे करेंगे मतलब वो लाइबिलिटी होंगी। लॉस होगा तो रिकवर करेंगे, मतलब वो लॉस विल बी एन एसेट। विक्रम समझ गया क्या? लॉस क्या रहेगा, क्यों एसेट रहेगा? क्योंकि वो टाटा एंटरप्राइजेस को रतन टाटा से पैसे रिकवर करना है, लेना है, मतलब इसके लिए रिसीवेबल है, इसलिए इट विल बी एन एसेट। प्रॉफिट विल बी ए लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि टाटा एंटरप्राइजेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो रतन टाटा को देना है, इसीलिए इट विल बी अ लाइबिलिटी। तो पीएनएल बन गया। 31 मार्च 21 तक को शाम को 7 बजे दुकान बंद करने के बाद जो बनेगी वो रहेगी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बहुत सारे लोगों के काम में आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम में आती है, फाइनेंसिंग वाले लोगों के लिए काम में आती है, डेटर्स के काम में आती है, और खुद रतन टाटा भी तो जानता है ना मेरे पास कितने पैसे है, कितने पैसे मेरे को देना है, वो भी उसको यहीं से मिलेगा। सो ये सब कुछ हो गया हमारा आज के दिन का बेसिक्स। अगले दिन का बेसिक्स कल पढ़ेंगे। मगर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करें क्योंकि हमको चाहिए बुरे कमेंट्स। हमको सिर्फ हमारा अच्छी चीजें नहीं चाहिए, हमको हमारी बुरी चीजें भी चाहिए। तो क्या कमियां आपको लगती है वो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं वो गलतियां सुधार सकूं। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ बेटर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।